guys, and now we have question number 2 of exercise 1.1, right? Chapter 1. Okay, so what is the question? In a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. In if Jack's score in 5 successive rounds were 25 marks he got in first round, -5 marks he got in second round, okay, कुछ incorrect हो गया होगा, -10 got he in third round and fourth round 15 and then fifth round 10 marks, right? So you need to find out the total score. First you can write the score of each part, first round or second round, then after total score you will find total score. Meanwhile finding the total score you will find the sum of all the marks got, right? So 25 plus -5 plus 10 plus no need to put bracket because only positive number is there, 15 plus 10, okay? ये है उसके सक्सेसिव 5 राउंड्स 1 2 3 4 और 5. देखिए बच्चों, मैंने एक राइट साइड में एक टेबल बनाया है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी काफी हेल्प करेगा. कुछ सेंस ऐसी होती हैं, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नेगेटिव काउंट करते हैं. देखिए ईस्ट डायरेक्शन जो है आपका, हम उसको पॉजिटिव काउंट करते हैं. ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट, वेस्ट, ओके. नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, नॉर्थ इज पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव कहलाते हैं आपके. राइट, माय राइट हैंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वी आर टेकिंग नेगेटिव, और राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन वी आर टेकिंग पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन वी आर टेकिंग नेगेटिव. तो उस तरीके से लेफ्ट और राइट आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, लॉस हुआ है दैट इज नेगेटिव, राइट? So deposit, you want to deposit some money, that is positive. You want to withdraw some money, negative. Okay. Correct, something correct, positive. Something incorrect, negative. Above the ground, above the table, right? Like that, you will call it positive, or below you will call negative. Okay. So increase means something increasing. Okay. So you will take it positive, or decrease means something is going down, means that is negative. तो आपको इन सब सेंस के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प जरूरत पड़ेगी इस टेबल की. टेबल को भी आप ड्रॉ कर लीजिए. ओके, इधर बढ़ते हैं आप क्वेश्चन में. यहां भी देखिए आपको गिवन है कि फॉर पॉजिटिव मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, तो करेक्ट है तो पॉजिटिव ही मिलेगा बिकॉज करेक्ट इज इन पॉजिटिव, और इनकरेक्ट मार्क्स आर गिवन फॉर द नेगेटिव मार्क्स, राइट? नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट तो मेरा नेगेटिव में है तो नेगेटिव ही होगा, राइट? अकॉर्डिंगली नाउ वी विल सॉल्व दिस. 25 plus minus, open the bracket first, okay, plus minus plus 15 and then plus 10. Now you can subtract this, not a problem. 25 minus 5, 20. Write down the left all numbers as it is. Now next step, subtract this, become 10. Write down all the left number as it is. Okay. Now you can add these all together. Right? 10 plus 15, 25, 25 plus 10, 35. So 35 marks he got total at all, right? This was the question number 2. Now we have question number 3. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday. On Monday, this is the Monday. On Monday it was -5 degrees Celsius, right? So you will write temperature on Monday -5 degrees Celsius, right? Then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. Dropped by 2 degree. Dropped कहाँ भी आता है बच्चों? आपका dropped आता है आपका बच्चों नेगेटिव में, राइट? तो dropped का मतलब टेम्परेचर डाउन हुआ, राइट? Dropped by 2 degrees Celsius. This is mean dropped. It represent minus. Okay. So -5. It was already temperature degree Celsius and -2 degree Celsius. पहले -5 डिग्री था और 2 डिग्री और ड्रॉप हो गया, मतलब हम फिर से माइनस करेंगे 2, राइट? तो इट बिकम -7 डिग्री सेल्सियस. तो ये -7 डिग्री सेल्सियस हो गया, राइट? अब
ट्यूसडे को टेम्परेचर मेरे पास हो गया -7 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपके पास। ओके, आगे पढ़ते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे हो गया आंसर मेरा फाइनल। ओके, नाउ ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय, अब रोज कहां पे आता है, रोज मतलब इंक्रीज, इंक्रीज और रोज बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, राइट। सो रोज मतलब पॉजिटिव, मतलब कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अप हुआ, तो दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, मीन -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। देखो हमें +4 कब करना है, -7 से टेम्परेचर ऊपर आना शुरू हुआ है, राइट, तो हम -7 में +4 कर रहे हैं। ओके, सो आंसर विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वेडनेसडे, और ये था आंसर ट्यूसडे का। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level। मीन देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको क्या गिवन है कि एक प्लेन है, वो ग्राउंड लेवल से, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, और जहां पे ग्राउंड लेवल मीन वाटर लेवल, उससे ऊपर वाटर लेवल से वो ऊपर कितना है 5000 मीटर अबव हाइट पे प्लेन फ्लाई कर रहा है, राइट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, दिस इज द, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये आपको पॉइंट की जरूरत होगी। Now at a particular point it is exactly above our submarine, right, एक सबमरीन है कोई पानी के अंदर, उस वो exactly उसके नीचे है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, वो सी लेवल के अंदर नीचे है डाउन में। तो यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, एग्जैक्टली ये डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में। तो देखिए वाटर लेवल से इतना ये ऊपर है 5000 और इतना ये नीचे है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट। सो हाइट ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन, 5000 मीटर, 5000 मीटर, एंड हाइट डेप्थ ऑफ द सबमरीन इज 1200 मीटर, दिस इज द डेप्थ ऑफ द सबमरीन, राइट। So you will write here answer, vertical distance between them is equal to 5000 meter plus 1200 meter, so it becomes 6200 meter, and this is your फाइनल आंसर। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जीरो लेवल से, जीरो है ग्राउंड लेवल, जीरो यहाँ पे होगा, इसको जीरो कंसीडर करते हैं, और ये अबव पॉजिटिव, ये बिलो नेगेटिव में है, बट वी विल प्लस टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने यहाँ पे दोनों को प्लस कर दिया है और आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5।